very succinct manner, very relevant manner. He is telling that the publication of science writer, editor and author Nicholas Wardage well-researched article in the Bulletin of the Atomic Scientist, The Origin of COVID. Did people or nature open Pandora box at Wuhan? Very pertinent question, no? Whether the people or the nature open Pandora box at Wuhan has set alarm bells ringing about the collusive cover-up of the possible leak of the novel coronavirus from the Wuhan Institute of Virology. He has laid out a strong case for a fuller investigation into the event. Means for that investigation is required. Now he is dwelling upon that US link, that how US is also linked because the research work has been sponsored by some of the US corporate sector. Now they are telling that okay, why China has been chosen for this thing, why in the Wuhan Institute of Virology has been sponsored by the American funds. What is China's reaction to that? And all this chronology of events is telling, and present and future danger is telling that the coronavirus escaped from the Wuhan Institute of Virology, in fact increasingly plausible. Whether this was a negligent or willful act, just see. Negligent or willful act can never okay. So here the basic aspect is that here two ethical questions are coming. What are the ethical questions? First thing, one question related to science, maybe, I don't know, not that applicable. It may be related to international relations also, okay, maybe. But one question from ethics can be there, what the procedural injustice has been taken. Procedural. You just see this type of claim is there, this type of allegations are there, this type of charges are there, that this is a man-made virus and produced in the Wuhan lab and there was a conspiracy or it was leaked. So it required one investigation. What is there? Investigation. Everybody will tell that yes. Present US President has also dwelt upon the same thing, that investigation has to be done. Now very important question, that who will do the investigation part. Here comes the concept of natural justice. My dear students, please note down this very important word from the ethical perspective. What does it mean by natural justice? कोई मुझे बताएगा? Will anybody will tell me what does it mean by natural justice? Okay, Yogesh, Aura, Ujjwal, anybody will tell me what does it mean by natural justice? Natural justice क्या है? Aura? Unmute? Aura is required to unmute. Yogesh is telling something. Okay, Yogesh. सर ह्यूमंस को मतलब प्रॉब्लम वगैरह नहीं होना चाहिए, लगता है ह्यूमन काइंड को, उनको जस्टिस मतलब उसे क्या कह सकते हैं, Okay. थोड़ा ह्यूमंस से रिलेटेड होना चाहिए ऐसा कुछ. ठीक है, मैं समझा आप क्या बोलना चाह रहे हो. Sir, it can be justice which is driven by the laws of the nature. Sir, I'm not sure, but something that the person who's delivering justice needs to be impartial. Very good, very good. Alright, I mean just on the important points he has told, very important point. Actually, natural justice is a concept. These concepts are having certain basic tenets. First thing is that the nemo deus causa sua. Nemo, N-E-M-O, nemo deus causa sua. This is that nobody can be judged in his own court. Here what is happening? Investigation is there, but China is telling that I am the judge in my own court. Or USA is telling that no, it's all right. I am the judge in my own court. But both are the party to it. Wuhan is in China and America has funded. So there has to be one neutral body. Impartiality. That is the first clause of natural justice. Justice can be delivered only by that person
who is truly impartial, truly impartial. And second part is that what is the criteria of impartiality? That justice not only to be imparted but seen to be imparted. जस्टिस सिर्फ किया नहीं जाता है बट इट इज सीन टू बी इम्पार्टेड बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल प्रोसीजर्स. ईच एंड एवरी मीन्स स्पीक्स दैट yes, these are the procedures by which justice has been imparted. Means procedural justice. Procedural justice. Justice not only to be imparted but seen to be imparted. Seen. Procedural justice. Okay. So procedural justice is very important part. Here the concept of that you require to speak out, speaking order. That why we has given this type of the judgment. The second, from what this is nemo juris causa siva, and subsequent to that justice not only to be imparted but seen to be imparted. Please write down this phraseology of the words because these are the basic tenets, pillars on which ethics, integrity and aptitude is resting upon. आप इसको नहीं समझोगे एथिक्स नहीं समझोगे. बिकॉज कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, इस साल एक क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, रूल और लॉ में क्या फ़र्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल एंड लॉ. दैट इज देयर इन आवर सेव क्लासेस, स्मार्ट ऑडियो वीडियो क्लासेज ऑन आवर साइट, वेबसाइट हमारे क्लास हैं इस पर. और सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. The justice not only to be imparted but seen to be imparted. Here procedural justice is important part, speaking order is important part, and third part is the Indian connotation. Justice P.N. Bhagwati has told once that delayed justice is denied justice. इतना देर से आप जस्टिस देते हो तो समझो कि उसका मतलब खत्म हो जाता है. इट इज ए डिनाइड जस्टिस. सो दिस थ्री आर द पॉइंट्स ऑफ दिस जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन बट सीन टू बी डन. Am I clear? तो ये दिस इज द पॉइंट, द सेकेंड पॉइंट. द फर्स्ट वाज द नेमो जुडिस कॉजा सुआ, जस्टिस नॉट ओनली टू बी इम्पार्टेड बट सीन टू बी इम्पार्टेड. नाउ कम टू थर्ड टेनेट ऑफ द नेचुरल जस्टिस, दैट इज नोन एज द ऑडी, AUDI, ऑडी अल्टेम पार्टम. It is not like that somebody comes and just give the justice. No, you must hear the other side. आप उस साइड को सुनना होगा. Somebody is charging and somebody is accused. The accused has to be given the proper chance to defend himself. He is proven, unless not proven, he is not guilty. Otherwise, he is innocent. Audi altum partem. So, my dear students, with these tenets, this is also applicable. That you cannot only blame Wuhan or China or America, but you have to hear their versions. Then impartial justice system has to be there. Their procedural justice has to be implied. A judgment based on the speaking order to become, and it should be not delayed. Not like that after 10 years it is coming. It should not be delayed. So the things will become clearer to us. This is the cause of the humanity, the human action. Delivering justice is also a human action. This question has been asked some time back. What does it mean by human action? When the human action is there, then entire humanity is coming. That action which is applicable for the entire humanity, for the cause of the entire humanity, then it is the human action. Simple action like you are sleeping, you are taking food, you are going to bathroom, you are taking bath. So these are the normal actions. But those actions with which your interaction with the society is coming, humanity is coming, then this is human action and this is the domain of ethics. ये क्या है? यही डोमेन है एथिक्स का. माय डियर स्टूडेंट्स, सो कुछ पॉइंट क्लियर हुए? और Yes, sir. If you could repeat the third point. So first was impartiality, the second was procedural justice, and the third was Audi altum partem. Other person must be heard. दूसरे को भी सुनो. Okay? Suppose one of your friend, she is married
and she is having not that cordial relation with her husband, and she comes to you because she is your friend, and she is always complaining, creeping that my husband is doing this, is so mean, so mean, so mean, so mean, and you just start advising that no, you do like this, you do like this, you do like this, and ultimately things up to that level that there is a breaking point, that you are very judgmental, you are not judicious. और am I clear? Yes, sir, got it. हाँ, जजमेंटल और जुडिशियस में अंतर है कि नहीं है? बिग डिफरेंस इज देयर. सो आपको क्या करना है कि यू आर टेलिंग ऑल दोज थिंग्स, बट आई मस्ट कीप इम्पैथी विथ दैट मैन. इफ यू आर टेलिंग सो मेनी क्रीपिंग वर्ड्स, सो मेनी थिंग्स टू मी, व्हाट द life hell you have created in your own family. No, there is something wrong with you also. So you just one day we'll have a coffee with your husband, you, and I will listen what the real problem is there. Because unless I am not listening him, I cannot totally relying on you. Because I know you for a long, it doesn't mean that you are always correct. So there may be certain other issues. Yes, sir. Understood. So you have to hear the other side before passing judgment. लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ऑडी अल्टम पार्टम नहीं करते हैं. नहीं, हम एक प्रिजुडाइज्ड माइंड, स्टीरियोटाइप अप्रोच से डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हो जाते हैं. और वी स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग, वी मेक स्टीरियोटाइप, प्रेफरेंस में गलत हो जाता है. इज इट क्लियर? So, odi altum partem, nemo juris causa sua, justice not only to be imparted, not only to be done, but seen to be done. Procedural justice. Procedural justice means speaking order and prompt justice. Is it clear? So, you are finding that how to read newspaper. कुछ हद तक कुछ clear हो रहा है कि नहीं? How to read newspaper so that it is having applicability in the ethics paper as well as with other GS paper, that has to be seen. ये आपको समझना होगा. Now here comes the essay paper also. essay paper में हम क्या बात कर रहे हैं? What the quotation I have given to you? Science is organized knowledge. Sorry. Science is organized knowledge, yes. And wisdom is organized life. Science is organized knowledge and wisdom is organized life. Who has told? This is the quotation of Immanuel Kant. Immanuel Kant. Write it down. I wish that you have to write in 200 words elaborating this quotation. What is the quotation? The science is organized knowledge and wisdom is organized life. ठीक है, आप लोग लिखोगे इस पे? उज्जवल, योगेश और you have to write. जब आप लिखोगे तब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे जाना. नॉलेज एंड विजडम इस डोमेन पे क्वेश्चंस पूछे गए आते हैं हमेशा. ऐसे में भी पूछे गए हैं, एथिक्स में भी पूछे गए हैं. नॉलेज विल नॉट नेसेसरली make you a gentle person. Knowledge can make you a thief also. नहीं. If you are having good knowledge of cyber crime, you can be a criminal also, and you can be a police officer also. Isn't it? So knowledge doesn't give you guarantee that you will utilize that knowledge only for good reasons. If you are a person who knows how to make a bomb, you can kill people and you can defuse the bomb to save the people. No? When you are saving the people, it is wisdom. When you are killing the people, you are merely applying knowledge. Is it clear? Knowledge made Hitler a tyrant, but wisdom make a person Gandhi. History tells what is knowledge, what is wisdom. No?
What was a wise decision? That time tells. Time is the testimony of all those things, isn't it? So this is the important, that science is organized knowledge, wisdom is organized life. चलिए अब हम before ending the class, because it is the orientation class, what was my objective of today's class? My objective was very simple, that what I have told in the beginning only, that there will be some live case study discussion. I have told my own live case study discussion, because in my own life my wife has purchased a slipper of 6,000 rupees. It was a fact long back. 6,000 rupees was having some value, because I am telling the story of 2002 2003. Okay, so काफ़ी वैल्यू था उसका, है ना. और so live case study discussion, and I have told that okay, I will take the case study from diverse field. Like today I have taken one case study of the Wuhan, this investigation. This is also a case study. How will you deal with the situation? Thinking principle of natural justice in mind. Okay. There one topic of AC has come, that science is organized knowledge, and wisdom, that is the wisdom is organized life. Okay. So that topic you have to deal, because firstly you have to write in 200 words. Subsequently we will start practicing, so that we can write in 1,000 words in the examination on the same topic. Okay, because we have to open. What is knowledge? Knowledge, there is one concept in psychology ने, knowledge पर काफ़ी काम होता है, एजुकेशन लर्निंग पर काफ़ी काम होता है साइकोलॉजी में. लेकिन इसमें क्या कहते हैं, एक हम लोग नॉलेज के ऊपर रैपिंग करते हैं. एक नॉलेज लिया, फिर उस पर रैपिंग किया. स्पाइरल बाइंड जिसने नहीं था, स्पाइरल बाइंड स्पाइरल की तरह स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं. तो आई विल स्कैफोल्ड इट. स्कैफोल्ड टेंसली का प्रिंसिपल है, स्कैफोल्ड इट, और देन इस पर स्पाइरल बाइंडिंग करेंगे. नॉलेज के डोमेन को 200 वर्ड पर लाएँ, फिर 200 वर्ड्स को हम बाद में 600 वर्ड्स पर लाएंगे, 600 वर्ड्स को हम 1200 वर्ड्स पर लाएंगे. एंड योर वन एसे इज कंप्लीट और नॉट? वन एसे विल बी कंप्लीट. I have given some instances, Hitler, citing bombs, etc. Okay, so that is our approach. Linkage with the different subject domain from the same newspaper, that will be our approach. And then coming to the domain of the syllabus of the ethics part and case studies. I am discussing one more case study with you. Very simple case study. आपसे पूछा जाता है केस स्टडी. सपोज मैं आपसे पूछता हूँ, अभी मैं इसका आंसर भी आप ही से पूछूंगा कि दिस इज योर एग्जामिनेशन, यूपीएससी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ. ओके, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर अपियरिंग फॉर द होल ईयर, यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन. और एकाएक आप स्कूल जहाँ आपका सेंटर है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, जस्ट बिफोर दैट ऑन द चौराहा यू आर फाइंड दैट एक बहुत बड़ा भीड़ है और ट्रैफिक थोड़ा रुका हुआ है. आप वहाँ से पैदल भी जा सकते हो, ट्रैफिक का मोशन है, लेकिन भीड़ को जब ट्रैफिक में आप भीड़ को पार कर रहे हो तो देखते हो कि एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है. ब्लड स्टेन बॉडी इज देयर लाइंग ऑन द रोड, द पर्सन इज इन सेंस, एंड सडनली यू रिकलेक्ट दैट इसको तो मैं अपने घर के फ्लैट में जब मैं लिफ्ट में चढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ इस आदमी को, आई हैव सीन इन सो मेनी टाइम्स. तब अपना वॉच देखते हुए क्या पता कि 9:56 एंड एट 10 o'clock द एग्जाम इज देयर. 9:56 हो रहा, 9:56, ओनली 4 minutes आर देयर एंड यू हैव टू रीच द सेंटर. मैंने क्या किया, आपको एक एथिकल डिलेमा पोज किया. क्या किया हमने? पोज किया एथिकल डिलेमा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एथिक्स. और आप मुझे ये बताओ कि आप क्या करोगे, उज्जवल क्या करोगे? एकदम सही सी बताना, दिल की बात बताना. I can give some first aid at that moment. यार फर्स्ट एड 15 मिनट. I can call the ambulance at least, sir. You can call the ambulance. ठीक है. Sir, you said that वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, तो अगर मेरी जगह कोई और ले सकता है, मेरी जगह कोई और हेल्प कर सकता है, तो that option will be better because मेरी जगह कोई और एग्जाम नहीं दे सकता है. So at that point, अगर हेल्प कोई और कर सकता है तो इट्स बेटर दैट आई शुड गो फॉर माय एग्जाम बिकॉज वहाँ पर कोई रिप्लेसिंग एजेंट है ही नहीं. गुड.
चलिए ठीक है, बोथ आर गुड, बोथ आर करेक्ट। एथिक्स में कोई राइट आंसर नहीं होता है ना। मैं सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, एज ए सिविल सर्वेंट आप में एप्टीट्यूड है कि नहीं, मैं उसी डायरेक्शन में सोच के ताली बजाऊँगा आपको, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि मैं आपके नॉर्मल आंसर पर ताली बजाऊँ, मैं एप्टीट्यूड पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ कि एज ए सिविल सर्वेंट के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपका एप्टीट्यूड क्या बोलता है, ठीक है ना। करेक्ट, आई एम गेटिंग, आर यू गेटिंग, इसलिए मैंने बोला कि इट इज ए गुड आंसर। योगेश तुम क्या करो यार, खैर अब तो आंसर करीब करीब दिख रहा है एप्टीट्यूड पर्सपेक्टिव से। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही जो लोगों से मतलब बात करूंगा इससे रिलेटेड, अगर किसी को मतलब कोई और कर सकता है फाइनेंशियली, अगर उसको रिक्वायरमेंट है कोई और हेल्प नहीं कर रहा फाइनेंशियली, तो मैं थोड़ा फाइनेंशियली उसको दूसरे पर्सन को सपोर्ट करके और एम्बुलेंस को अगर कॉल करके इस तरीके से। और एग्जाम में उससे शायद 15-20 मिनट लेट अलाउड रहता है कि आप ना 10:30 तक आ सकते हो और एग्जाम दे सकते हो, तो मेरे पास मतलब 15-20 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा। हाँ, ठीक है। उज्जवल ने हाथ रेज किया, उज्जवल बताओ। Sir, actually, earlier I was a serious aspirant. There we used to have a situation reaction test. हाँ, So these and there was मिलिट्री का रूल कुछ और है, ठीक है, मिलिट्री का एप्टीट्यूड कुछ और है। ठीक है, that's why sir it came spontaneously as that. I like मिलिट्री that का one. एप्टीट्यूड कुछ और है, स्काउट एंड गाइड का एप्टीट्यूड कुछ और होगा, पुलिस का एप्टीट्यूड कुछ और होगा, Yes, sir. है ना। तो Yes, sir. सोशल वर्कर का एप्टीट्यूड और होगा, सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड से हमें सोचना होगा, नहीं। Okay. तो ठीक है, अब हम सोचते हैं सिविल सर्विसेज के एप्टीट्यूड से। चलिए मैं दूसरा केस स्टडी और बता देता हूँ और चलता हूँ। मैं अपने लाइफ का बता रहा हूँ, अभी मेरे साथ हुआ, जस्ट नाउ इट हैज़ हैपेंड, थोड़े दिन पहले हुआ। सम ऑफ यू मे बी नोइंग मी एंड माई वर्क, कि अभी हम लोग टोटली कमिटेड है सोशल सर्विस के लिए, और माई वाइफ इज ग्रेटली कमिटेड, बहुत ज़्यादा सोशल सर्विस में है वो। She has got so many national acclaimed award also, like from the president she has been awarded. She has been the Flame International has awarded her for the Championship Change Award because of certain of her work, whatever she is doing in the remote areas. तो गांव में रहती है ज़्यादातर टाइम, तो गांव में सेफ्टी इशू है, क्योंकि जिस जगह पर रह रही है वहाँ काफ़ी डकैती होता है, लॉट ऑफ रॉबरीज आर टेकिंग प्लेस। और आप ऐसा मत सोचना, मैं पिक्चर में सही बता रहा हूँ कि डकैत 40-50 के नंबर में आते हैं रात को, 40-50 डकैत, दे आर आर्म्ड ऑल्सो। वो एकाएक 40-50 लोग धावा बोलते हैं, और गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग पॉलिसी ऐसी है कि गांव में लाइसेंस्ड गन है नहीं। जिस गांव में रह रही एक भी आदमी के पास लाइसेंस गन नहीं है, अगर वो भी लाइसेंस लेना चाहे तो जो गवर्नमेंट की एफएती है लाइसेंस देता नहीं है जल्दी। और डकैत को पता है कि कुछ है नहीं, चलो दरवाज़ा तोड़ना है, और तोड़ता है तो लोग अपने दरवाजे को मजबूत रखते हैं, है ना, कि भाई कोई इस तरह का रॉबरी वगैरह ना हो। तो शी वॉज टेलिंग सेम थिंग दैट यार तो डकैत आएगा तो हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, नथिंग वी कैन डू। देन आई टोल्ड दैट एनीहाउ यू आर स्टेइंग इन द रूम, उस रूम का दरवाज़ा बड़ा मजबूत है ना, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि लोहा का ग्रिल के बाद एक गेट है, तो उतना आसान नहीं है इस दरवाजे को तोड़ पाना। और उनके पास भी 40-45 मिनट में डकैती करते हैं, दे आर टेकिंग हार्डली 40-45 मिनट्स, इतना टाइम नहीं है। 45 मिनट में दरवाज़ा तोड़ेंगे तब तक गाँव में बहुत भीड़ हो जाएगी, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा पुलिस भी 1 घंटा में पहुंच ही जाएगा, हालांकि बाद में पहुंचे, लेकिन फिर भी वो 45 मिनट में भागना चाहते हैं। तो यू आर सेफ। देन शी स्टार्ट टेलिंग कि मेरा जो नीचे स्टाफ है, जो कुक करता है, ये करता है, वो बेचारा तो उतना सेफ नहीं है, उसका दरवाज़ा उतना मजबूत नहीं है। अगर मान लिया उसी को पिस्तौल लगा दे, बोला कि जस्ट ओपन द डोर मैडम, अदरवाइज आई विल शूट योर सर्वेंट, देन व्हाट शुड आई डू? ठीक है, और व्हाट विल बी माई रिस्पॉन्स, और मैं क्या बोलूँ करूँ कि मैंने क्या जवाब दिया होगा बताओ? और सर सब मतलब आई डोंट नो सर, इसमें तो ट्रिकी है। नहीं, मैंने क्या जवाब दिया होगा बताओ? इट इज ऑल्सो एथिकल डिलेमा है मेरे पास।
सर एज अ सिविल सर्वेंट अगर सोचना है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्टाफ एज वेल, तो आपने दरवाजा खोलने के लिए बोला होगा। नहीं, मैंने एक इमैनुअल कांट का कोटेशन मैंने सोचा है ना, मैंने कोटेशन ने सोचा, कंपैशन इज नॉट ओनली दैट यू आर एम्पैथाइजिंग विद द पर्सन बट यू आर गोइंग ऑल द वे टू हेल्प हिम, टू रिलीव हिम फ्रॉम द प्रॉब्लम। ठीक है, वो सर्वेंट मेरा परेशानी में है तो उसको खाली एम्पैथाइज नहीं करेंगे, हमको उसको हेल्प करने की कोशिश भी करनी होगी पूरे बाय ऑल मीन्स। ठीक है ना। A second thing what I have told, I have understood that taking the things out of emotions only, that you are just outbursting with your emotions, if you perform an act that makes you not smart but stupid, आपको स्टूपिड भी बना देता है, ज़्यादा इमोशंस में सोचते हो। तो कुछ लाइफ के प्रिंसिपल्स को पहले डिफाइन करने होंगे। दैट डेफिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स हैज़ टू बी डन बिफोर हैंड, बिकॉज एक प्रॉब्लम बड़ा वाइटल है कि क्या होगा। ठीक है ना। तो मैंने बताया एक केस, बिल्कुल सिमिलर केस, दैट इट सो हैपेंड इन 1998 में 2000 के आसपास एक कंधार हाईजैक हुआ था प्लेन का, पता है ना, IC-811। ऋत्विक कौन सा प्लेन था वो? IC-814 एयर इंडिया का। एयर इंडिया IC-814, यस। हाँ, कंधार सम ऑफ द टेररिस्ट हैज हाईजैक्ड द प्लेन टू कंधार, है ना, कंधार ले गए थे और दे हैव पुट द गवर्नमेंट आई मीन क्लेम कि भाई 4 टेररिस्ट को छोड़ दो, 5 टेररिस्ट को, नहीं तो प्लेन को उड़ा देंगे। द 200 पैसेंजर्स इन दैट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 टेररिस्ट को छोड़ दिया। ठीक है ना। उसके पहले एक केस हुआ था 1989 में कि होम मिनिस्टर की बेटी को जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट लोगों ने हाईजैक कर लिया था। मुफ्ती शहीद जो थी ना, परहैप्स शी और सिस्टर वाज देयर। महबूबा मुफ्ती की सिस्टर था। क्या क्या थे? हेलो, सिस्टर, शी वाज सिस्टर ऑफ महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती है इसकी सिस्टर। तो उसको छोड़ने के बदले में 5 टेररिस्ट को उस समय भी छोड़े गए थे, है ना। आफ्टर दैट 2003-2004 में इंटायर वर्ल्ड में उस समय काफ़ी हाईजैक होता था। देयर आर लॉट ऑफ हाईजैक ऑफ द प्लेन्स। पूरे वर्ल्ड के लोगों ने मिल के एक नियम बनाया कि अगर हाईजैक करेगा कोई टेररिस्ट, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, प्लेन को उड़ाना उड़ा दो, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वट एवर यू डू। ठीक है ना। किसी VIP को अगर तुम ले जाओगे, किडनैप कर दोगे, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, आपको जो करना है करो। और प्लेन को उसके बाद से प्लेन का हाईजैक होना बंद हो गया। ठीक है ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर हम ये रूल बना ले घर में पहले ही कि डकैत आया, रॉबर आया, और मैं, मेरी वाइफ, हर नेम इज रितु जायसवाल, रितु जायसवाल को पकड़ के पिस्टल लगा दिया, बोला कि नीचे जो लड़का है उसका नाम है मंटू, कि मंटू दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं मैडम को गोली मार दूंगा। तो तुम मंटू, मैं रिटर्न रूल बना के दे रही हूँ कि तुम दरवाज़ा अपना नहीं खोलना, अपने को सेफ रखना। ठीक है, मुझे गोली मार देगा, मार देना, मैं बोलूँगी डकैत को तुम मुझे गोली मार दो, कोई बात नहीं, मंटू दरवाज़ा नहीं खोलेगा, वो अपना दरवाज़ा के अंदर बंद रहेगा। ठीक है ना। यू सेक्रीफाइस योर सेल्फ, अपने को सेक्रीफाइस तुम कर देना। वाइस वर्सा इज एप्लीकेबल टू मंटू ऑल्सो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और यस सर, रूल पहले ही बना दिए हैं। ठीक है ना। रूल इज मेड बिफोर हैंड कि मंटू तुम दरवाज़ा नहीं खोलना, गोली मुझे मार दो, कोई बात नहीं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डकैत कोई रूल पता अगर हो जाए तो डकैत बोलेगा कोई फायदा नहीं है, जिसको मारना है मार दो, कोई दरवाज़ा तो खोलेगा नहीं। तो ये उस डायरेक्शन में डकैत सोचेगा ही नहीं, रॉबर्ट सोचेगा ही नहीं। तो मैंने क्या किया, एक एथिकल पर्सपेक्टिव को मैंने लॉन्ग डोमेन में सोचा और मैंने उसका ये जवाब दिया कि ये ज़्यादा ठीक रहेगा। अदरवाइज आई मेक इट वेरी क्लियर। आप इसको डिस्कस करो 2-4 लोगों में, उनको पता रहेगा। डकैत विशिष्ट समाज के लोग होते हैं, उनको मैसेज रहता है कि कहाँ क्या प्रिंसिपल अप्लाई होता है। देन दे ओनली चूज दैट हाउस। तो उनको पता है कि ये तो फायदा नहीं है यहाँ पर, है ना।
इनका दरवाज़ा नहीं खुलेगा जब मेन जहाँ से सामान मिलना है, सपोज कि अगर कुछ होगा भी तो, क्योंकि कुछ नहीं, वाइफ के पास 1 लाख का एक मोबाइल हो सकता हो, 1 लाख का एक लैपटॉप हो, यही कुछ तो हो ही सकता है ना। समथिंग इज देयर, सम वैल्यूएबल इज देयर विद द वाइफ। तो बोला सर्वेंट को मार के कोई फ़ायदा नहीं, दरवाज़ा तो खुलेगा नहीं। या मान लिया कि सर्वेंट के पास बाइक की चाबी होती है, तो बाइक जो है सो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैडम तो दरवाज़ा खुलवा नहीं पाएंगी सर्वेंट से, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। ठीक है ना। मैंने एक एज्यूम किया सिचुएशंस को, तो विजडम इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू डील विद द केस स्टडीज। ठीक है, तो मैंने आज का क्लास में मेरा वही पर्सपेक्टिव था कि आई विल इंट्रोड्यूस यू विद द सब्जेक्ट। डोमेन स्टडी करेंगे, न्यूज़पेपर थोड़ा स्टडी करेंगे और इसको हम लिंक करेंगे, करेक्ट। और हम टेलीग्राम में इसको फिर से डवेल अपॉन करेंगे। सो दिस इज़ दी अप्रोच। तो आपको एक दूसरा केस स्टडी भी लिखना है, वही कि एग्ज़ाम में जा रहे हैं, रास्ते में आदमी पड़ा हुआ है और आप क्या करोगे। एज ए सिविल सर्वेंट जो मैं सोच रहा हूँ, जौहरा ने बोला कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरा एग्ज़ाम है, तो नहीं आओ, आई विल नोट डाउन, मैं उसका फ़ोटो अगर हो सका मोबाइल में तो खींच लूँगा, जाऊँगा सेंट्रल सुपरिटेंडेंट को पहले बोलूँगा कि सर एग्ज़ाम तो मेरा है ही, आई हैव कम ऑन टाइम, अलाउ मी, बट जस्ट स्पेयर 2 or 3 minutes एंड आप ये मुझे हेल्प कर दो, करवा दो, क्योंकि वो आदमी मर जाएगा। लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, प्लीज़ सेव इज लाइफ, इट विल सो नाइस ऑफ यू। आपके सेंटर पर अगर माइक है तो अनाउंस करवा दो कि कोई ना कोई पुलिस वाला ड्यूटी में लगा ही होगा यहाँ सेंटर में। सो मेनी पुलिस पर्सन आर देयर, एनी वन टेक दिस थिंग, उसे घर में मैसेज कर दो। मेरे अपार्टमेंट में उस आदमी को मैं लिफ्ट में चढ़ते हुए देखता हूँ, मेरे घर में खबर कर दो, मेरे घर में कुछ लोग हैं, वो लोग भी हेल्प करेंगे। तो बाई ऑल मीन्स ही मस्ट बी गिवन सम हेल्प, थोड़ा हेल्प उसको मिलना जरूर चाहिए, प्लीज़। इमोशनल अपील कर सकते हैं और हम अपना एग्ज़ाम दे लेंगे कुछ हद तक, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो मैं क्लास को अभी आई एम जस्ट पुटिंग, मैं अभी बंद करता हूँ।